Assalamualaikum students. I hope you all are fine and doing your work at your homes. As you all know that we are doing the fractions. आप लोगों को पता है कि आप लोग fractions कर रहे थे. Today we are going to do the multiplication of the fraction. Multiplication of fraction, how to multiply the fractions. As you all know that how to divide, how to add it, how to subtract it. उसको add किस तरह से करते हैं, subtract किस तरह से करते हैं. But now we are doing that how to multiply the fraction. हमें fractions को multiply किस तरह करना है. Multiplication of fractions. Multiplying a fraction by a whole number. When a fraction is multiplied by 1, the result is the same. अगर हम किसी भी नंबर को instead of fraction, अगर हम fraction के अलावा भी किसी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली रिजल्ट जो है वो आपका सेम ही आता है. किसी भी नंबर को अगर आप उससे मल्टीप्लाई करें तो नंबर एग्जैक्टली सेम आता है. मल्टीप्लाई अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन. अगर हम किसी फ्रैक्शन को सेम एज फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लाई करें तो हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हम एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें तो हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट. एज यू ऑल नो दैट कि जब हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऊपर लिखा होता है लाइक दिस 3/8, दैट 3 इज द न्यूमरेटर. आपको पता है कि जो नंबर हम ऊपर लिखते हैं वो क्या होता है, न्यूमरेटर. और जो नंबर हम नीचे लिखते हैं दैट वी कॉल द डिनोमिनेटर. दैट वी कॉल द डिनोमिनेटर. जो नंबर नीचे होता है फ्रैक्शन में वो डिनोमिनेटर कहलाता है और जो नंबर ऊपर होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है. ओके स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन, जब आप फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को हमेशा न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को हमेशा हम डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करते हैं. एज इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट कि 4 के नीचे कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है. 4 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है. जब कोई डिनोमिनेटर नहीं होता इट मींस कि वहां पे डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है. इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट 3/8 is multiplied with 1. That is the thing. Whenever we are multiplying the number with 1, the answer will be the same. But we are multiplying, when we are multiplying the fraction with the simple number, like in this question we have to multiply the number 4 with this 3/8. In this question 4 is simple one, that is not in the fraction. ये fraction में नहीं है. अभी मैंने आपको बताया कि जिस नंबर के नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है. Whenever we are going to multiply the fraction, we have to multiply the numerator with the numerator and denominator with the denominator. Numerator को हम हमेशा numerator से multiply करते हैं और denominator को denominator से multiply करते हैं. Like 4 multiply 3, 8 multiply by 1. ऊपर वाले numbers आपस में multiply होते हैं और नीचे वाले numbers आपस में multiply होते हैं. Okay students. Then if the number is simplified like 4 3s are 12 and 8 1s are 8, अगर हम इसको मजीद simplify कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, then we can cut it. And if we cannot do it, अगर possible नहीं है, so your answer will be as it is. Okay, in this that there is a 12/8 that will be cut from the table of 4. 4 2s are 8 and 4 3s are 12. 4 2s are 8 and 4 3s are 12. The answer will be 3/2. Further we are dividing it, then the answer will be 1 whole 1/2. 1 whole 1/2. 1 whole 1/2. That is your answer. Okay students, I hope you will understand that how we are multiply the fraction. Whenever we are going to multiply the fraction, we have to multiply the numerator with the numerator and denominator with the denominator. Numerator को हम numerator से multiply करेंगे और denominator को denominator से ही multiply करेंगे. Okay, let's see the example. That is the example again. 5/7 multiply with the 7. Here again there is no number just beneath the 7. 7 के नीचे कोई नंबर नहीं है. जब कोई नंबर नहीं होता तो मैंने आपसे क्या कहा है
कि हम क्या डिनोमिनेटर लेते हैं 1, क्योंकि जब कोई नंबर नहीं होता तो वहां पर 1 होता है, दैट विल बी 7/1। whenever we are multiplying, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले नंबर्स को लाइक न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 35 and 7 1 7, 35/7। देन वी कैन कट इट, हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 7 1 7 and 7 5 35। so the answer is 5। so the answer is 5। now let's see this second example। in this there is a mixed number। ये नंबर क्या कहलाता है? मिक्स नंबर कहलाता है। 1 whole 2/5, 1 whole 2/5। if we have to multiply this fraction, अगर हमें इसे मल्टीप्लाई करना है तो पहले हमें इसे एक सिंपल फ्रैक्शन में लेकर आना पड़ेगा। किसमें लाना पड़ेगा? सिंपल फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। सिंपल फ्रैक्शन में लाने का क्या तरीका है, क्या मेथड है? 5 को हम पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें उस न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। दोबारा बता रही हूँ आपको, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर में ऐड करेंगे। डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी आपका आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। लाइक 5 1 5, 5 आंसर आया आपका और उसमें हमने 2 को ऐड कर दिया। तो सिंपल फ्रैक्शन ऑफ दिस मिक्स्ड नंबर इज 7/5। 7/5। again I am telling you that 5 1 5 plus 2 7, that is 7/5। now it will be converted into the simple fraction। अब ये simple fraction में आ चुका है, आप इसको easily मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगेन जिस तरह से मैंने अभी बताया आपको मल्टीप्लाई करना, किस तरह से कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 8 7 56 and 5 1 5। 8 7 56 and 5 1 5। ये टेबल्स कट नहीं हो सकते, सो वी हैव टू डिवाइड इट। हम सिंपली इसको डिवाइड करेंगे एंड देन we will get the answer, that is 11 whole 1/5। 11 whole 1/5। okay students, I hope कि आपको समझ आया होगा how we have to multiply the fraction। हमें मल्टीप्लाई किस तरह करना चाहिए, उनको हम इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करना चाहिए, और आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे अपनी अपनी कॉपीज में। जो होमवर्क असाइनमेंट मैंने आपको दिया, यू हैव टू डू इट इन योर बुक्स and you also have to solve the worksheets। I hope you understand the multiplication of fraction। so keep update or your work and practice at home। inshallah we will meet in the next lecture। until that, Allah Hafiz, take care of yourself।